Hello, in my last video, we have discussed about meaning and purpose of research proposal. Today, we will discuss how to write research proposal or synopsis. Research proposal or synopsis is intended to convince others that you have a worthwhile research project and that you have the competency and the work plan to complete it. Generally, a research proposal should contain all the key elements involved in the research process and include sufficient information for the readers to evaluate the proposed study. Regardless of your research area and the methodology you choose, all research proposal must address the following questions: what you plan to accomplish and why you want to do it, and how you are going to do it. Research proposal is a serious task, and a good research study is likely to result only from a well designed and written research proposal. स्टूडेंट्स, जो एक अच्छा अनुसंधान कार्य है वह उसके वेल डिज़ाइन जो है रिसर्च प्रपोजल पर उस सिनॉप्सिस पर निर्भर करता है। और यही जो है दूसरी इस बात के लिए भी विश्वास दिलाती है कि जो आप में कार्य योजना को पूरी करने में कितनी जो है क्षमता है। साथ में ये अनुसंधान कार्यों के सभी मूल तत्व और पर्याप्त जो है सूचना होती है जो है रीडर के लिए मूल्यांकन करने में काफ़ी सहायता करती है। The proposal should have sufficient information to convince your readers that you have an important research idea, that you have a good grasp of the relevant literature and the major issues, and that your methodology is sound. तो जो हमारा रिसर्च प्रपोजल है या सिनॉप्सिस है उसमें फर्स्ट हम जो है टाइटल लेते हैं। टाइटल जो है शुड बी कंसाइज एंड डिस्क्रिप्टिव. Often titles are stated in terms of a functional relationship because such titles clearly indicate the independent and dependent variables. However, if possible, think of an informative but catchy title. An effective title not only piques the reader's interest but also predisposes him or favorably towards the proposal. तो जब हम टाइटल जो फिक्स करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह थोड़े शब्दों में काफ़ी सूचना देने वाला हो और जो है रीडर्स को जो है या जो है आसानी से जो याद रखने वाला होना चाहिए, यानी कि संक्षिप्त होना चाहिए। और साथ में हम जो है जो टाइटल हमारा होता है उसमें एक तरह से हम फंक्शनल रिलेशनशिप भी दिखाते हैं जो हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो है वेरिएबल्स होते हैं। सेकंड है एब्स्ट्रैक्ट. तो इट इज़ ए ब्रीफ समरी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 300 वर्ड्स. इट शुड इंक्लूड द रिसर्च क्वेश्चंस, द रैशनली फॉर द स्टडी, द हाइपोथेसिस इफ एनी, एंड द मेथड एंड द मेन फाइंडिंग्स. तो एब्स्ट्रैक्ट में जो है इन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हैं और वो जो है 300 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट जो है हमारा इंट्रोडक्शन. तो द मेन पर्पज ऑफ द इंट्रोडक्शन इज टू प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड और कंटेक्स्ट ऑफ फॉर योर रिसर्च प्रॉब्लम. How to frame the research problem is perhaps the biggest problem in proposal writing. However, try to place your research questions in the context of either a current hot area or an older area that remains viable. Secondly, you need to provide a brief but appropriate historical backdrop. Thirdly, provide the contemporary context in which your proposed research questions occupies the central stage. Finally, identify key players and refer to the most relevant and representative publications. In short, try to paint your research questions in broad brushes and at the same time bring out its significance. द इंट्रोडक्शन जो है आपकी द इंट्रोडक्शन जनरली कवर्स द फ्लोइंग एलिमेंट्स. जो आपकी जो है इंट्रोडक्शन है उसमें निम्नलिखित जो है तत्व को शामिल करना चाहिए हमें. उसमें हमारे जो है हम ये इसमें इंक्लूड करेंगे स्टेट द रिसर्च प्रॉब्लम विच इज़ ऑफन रेफर टू एज द पर्पज ऑफ द स्टडी. Provide the context and set the stage for your research questions in such a way as to show its necessity and importance, and present the rationale of your proposed study. Clearly indicate why it is worth doing and briefly describe the major issues and सब प्रॉब्लम टू बी एड्रेस्ड बाय योर रिसर्च. तो इसमें जो है आप इंट्रोडक्शन में आपको मेन जो है क्या आप जो वर्क कर रहे हो उसका क्या उद्देश्य है, उसकी क्या महत्व है उसका करने का, वो क्यों आवश्यक है करना. और सेकंड इसमें
आपको ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि जो आपने स्टडी प्रपोज की है उसकी क्या लॉजिक है, उसकी क्या रैशनली है, उसका करने का क्या तर्क है उसमें, और इसमें जो मेन इश्यूज़ हैं और जो सब प्रॉब्लम्स हैं वो सब उसमें आपको डालने इंट्रोडक्शन में। साथ में जो आपने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए हैं उनको एक्सप्लेन करना है, उसको उनकी जो है क्लियर कर जो उसके बारे में डिफ़ाइन करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है कि ये मेरे जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। एंड जो आपको हाइपोथेसिस उसके अंदर लिखनी है, जो हाइपोथेसिस आपने यदि उसमें जो है हाइपोथेसिस जो बनाई हैं, एंड इसमें जो है डिलिमिटेशंस एंड जो बाउंड्रीज हैं जो आपकी प्रपोज रिसर्च है, तो वो भी आपको उसमें क्लियर कर जो उसमें लिखनी है, उसको फोकस जो है होना चाहिए। और इसमें एक तरह से आप कह सकते हो जो इसमें आपको की कंसेप्ट जो है उसको डेफिनेशंस इसमें आपको प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट जो है हमारा लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू में सेवरल जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं। एक तो इसमें आपको इंश्योर करना है कि जो आपका वर्क है वो आपने दोहराया नहीं है, यानी कि किसी पहले ये वर्क नहीं हो चुका है, नया आपका जो टॉपिक है या वर्क है जो आपका नया है। एंड गिव्स क्रेडिट टू दोज हु हैव लेड द ग्राउंड वर्क फॉर योर रिसर्च and demonstrates your knowledge of the research problem, demonstrates your understanding of the theoretical and research issues related to your research questions, and shows your ability to critically evaluate relevant literature information, indicates your ability to integrate and synthesize the existing literature, and provides new theoretical insights or develop a new model as a conceptual framework for your research, convinces your reader that your proposed research will make a significant and substantial contribution to the literature, resolving an important theoretical issues or filling a major gap in the literature। तो लिटरेचर रिव्यू के थ्रू आपको जो है ये शो करना पड़ेगा कि जो आपका वर्क है वो नया है, और जो इससे पहले जो वर्क हो चुका है उसका आपने जो है क्रिटिकल उसको इवेल्युएट एनालिसिस करना है। साथ में आपको अपना जो आपका जो वर्क है उसके बारे में, उसके जो थ्योरेटिकल इंसाइट है, जो आप नया मॉडल तैयार किया उसका जो थ्योरेटिकल उसका और उसके बारे में आपको बताना है। साथ में इसमें आपने जो है लिटरेचर रिव्यू के द्वारा आप ये तो जो स्टडी आप कर रहे हो वो जो पहले स्टडी हो चुकी है उसका जो है आगे न्यू फॉर्म में आप वो कर रहे हो। And next, methods. Method section is very important because it tells your research committee how you plan to tackle your research problem, and it will provide your work plan and describe the activities necessary for the completion of your project। तो मेथड के थ्रू ही जो है आप उसमें आपको ये लिखना है कि आप जो काम कर रहे हो उसको कैसे कार्यान्वित करोगे, कैसे करोगे, क्या प्लान है आपको, आप जो काम उसके अंदर जो कौन कौन सी आप एक्टिविटीज़ करोगे। एंड द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर राइटिंग द मेथड सेक्शन इज दैट इट शुड कंटेन सफिशेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द रीडर to determine whether methodology is sound. Furthermore, since there are no well-established and widely accepted canons in qualitative analysis, your method section needs to be more elaborate than what is required for traditional quantitative research. More importantly, the data collection process in qualitative research has a far greater impact on the results as compared to quantitative research। And quantitative studies, the method section typically consists of the flowing section। तो जो क्वालिटेटिव जो स्टडीज़ होती हैं हमारी, तो उसमें हम ये कहते हैं कि जो डाटा कलेक्शन का प्रोसेस है वो ज़्यादा इफेक्ट डालता है क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड की बजाय। तो इसमें हम जो क्वांटिटेटिव स्टडीज़ हैं उसमें हम जो है मेंशन करेंगे, यदि आपकी क्वांटिटेटिव स्टडी है तो उसमें आपको डिज़ाइन बताना होगा कि आपने कौन सा क्वेश्चनियर लिया है, आपकी क्या लेबोरेटरी जो एक्सपेरिमेंट किया है, व्हाट काइंड ऑफ डिज़ाइन टू यू टू चूज़, आपने किस तरह का डिज़ाइन इसमें उसके लिए चूज़ किया है, एंड सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट एंड हु विल टेक पार्ट इन योर स्टडी, व्हाट काइंड ऑफ सैम्पलिंग प्रोसीजर डू यू यूज़, कि आपने जो सैम्पलिंग प्रोसीजर है वो कौन सा अडोप्ट किया है, सैम्पल जो आपने जो पॉपुलेशंस में सैम्पल चूज़ किया है उसमें जो प्रोसीजर यूज़ किया था वो कौन सा है, एंड जो आपने इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ किए हैं, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वेश्चनियर डू यू यूज़, वाई डू यू चूज़ दैम एंड आर दे वैलिड एंड रिलायबल,
and procedure, how do you plan to carry out your study, what activities are involved, how long does it take। तो जो मेथड्स है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो स्टडी है उनका डिफरेंट होगा। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स में हम आपने कौन सा क्वेश्चन ईयर यूज़ किया है, सैम्पलिंग जो है, प्रोसीजर कौन सा यूज़ किया है आपने, जो है जो पार्टिसिपेंट है आपके, जो पॉपुलेशन कौन सी है आपकी वो मेंशन करना है, आपने जो टेस्ट यूज़ किया वो रिलायबल वैलिड है कि नहीं है, और आपको ये भी बताना कि आपने कौन कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व की हैं। नेक्स्ट, रिजल्ट जो है ओब्वियसली यू डू नॉट हैव रिजल्ट एट द प्रपोजल स्टेज, क्योंकि ये हमारा प्रपोजल है, स्नोप्सिस है हमारा, हमने ये रखा कि हमने ये काम करना है, इन फ्यूचर में जो है ये काम करना है। तो आप इसमें जो है रिजल्ट्स जब हम लिख रहे हैं तो इसमें आपको सम आइडियाज़ जो है इंक्लूड करने हैं कि व्हाट काइंड ऑफ डाटा यू विल बी कलेक्टिंग एंड व्हाट स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर विल बी यूज्ड इन ऑर्डर टू आंसर योर रिसर्च क्वेश्चंस और टेस्ट योर हाइपोथेसिस। और लास्ट में जो इसमें आपको डिस्कशन करना है, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कन्विंस योर रीडर्स ऑफ द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ योर प्रपोज्ड रिसर्च। यू नीड टू कम्युनिकेट ए सेंस ऑफ एंथुजिज्म एंड कॉन्फिडेंस विदाउट exaggerating the merits of your proposal. That is why you also need to mention the limitations and weakness of the proposed research, which may be justified by time and financially constrained as well as by the early developmental stage of your research area। तो ये सब जो है हमारे, जब हम कोई रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस लिखते हैं तो ये सब जो है पॉइंट हमारे उसमें इंक्लूड होने चाहिए। Thank you.